हम गवाही सुनने के लिए जा रहे हो। सब लोग बैठ जाइए। हालेलुया। टेस्टिमनी टाइम, क्योंकि 3 दिन उपवास में था अपना यंगस्टर्स और यंगस्टर्स वर इन फास्टिंग फॉर 3 days। सो अपर रूम में मीटिंग हो रहा था। बहुत परमेश्वर का आत्मा का ऑसम प्रेजेंस वाज देयर। आराधना जब अपना कोयर कर रहे थे उधर, मुझे ऐसे महसूस हो गया बहुत साल पहले जो हम अनुभव किया उसी एक आत्मा का प्रेजेंस, एक गर्मावट, एक फ्रेशनेस अपर रूम में मैं अनुभव किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफी लोग गवाही के लिए रिक्वेस्ट किया है। सो जो गवाही बोलना चाहते हैं आप लोग आगे आ जाइए ना। कम टुगेदर दोज आर planning to give the testimony, come to the stage, and Angel or Samuel, you will manage the remaining 20 minutes. आ जाइए। कौन कौन गवाही देना चाहता था? कौन कौन नाम दिया था? हाँ, सब लोग साथ में आ जाइए ना। They were all fasting. प्रेम, कैसिया, पूजा, शांता, प्रिया, अपना किन्स, अपना यंगस्टर्स सब लोग फास्टिंग में था। मैं चाहता सबको स्टेज पे बुलाना चाहता, लेकिन उतना जगह स्टेज में नहीं, इसलिए जो गवाही बोलना चाहते हैं सिर्फ उतना लोग स्टेज में आने दीजिए, और बाकी आप लोग कंट्रोल कर लीजिए। यू कैन ओके। Praise the Lord. I thank God for the wonderful opportunity that God has helped us all stand here. This 3 days of meeting, I could have only attend 2 days, but then it was so powerful. It was amazing. I would like to share my personal experiences, what all happened with me. So this 2 days I resubmitted to God, because it like when I was very young, that was the time I got actually tongues and all. I always ask God, why did you give me itna young mein? Like I don't even remember all of that. So I asked God again, to fill me with His power and everything like that. And when I was young, I used to always, every single time before like leaving to a place, I used to go like एक कोने में जाके ऐसा प्रे करती थी कि परमेश्वर, like Holy Spirit, do you want me to go? ऐसा करके I still remember it very clearly that every single step I used to take, I used to ask Him, and that was lacking in my life. And so in these 2 days I resubmitted to God, and God showed me visions and spoke to me, and He confirmed me with another verse which I have been meditating, and it was a promise word for me. I would like to read that verse. So it's written in 1 Samuel 10 verse 6 and 7. The Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Once these signs are fulfilled, do whatever your hand finds to do, for God is with you. Hallelujah. This was a really confirmation these days, because pehle bhi I got this verse, but it was again reminded to me with this verse. And especially I want to share some particular experience which was while I went back home like yesterday. So we had whole day worshipping God. So we were worshipping, and then I took a small break for 1 hour, and I went back home, and I was laying in my bed. I felt like the whole bed was shivering or shaking. I was looking at my hands. Is it shaking करके मैं देख रही थी कि मेरा हाथ हिल रहा है क्या, या फिर बेड हिल रहा है क्या, मैं देख रही हूँ, बिकॉज पूरा सराउंडिंग हिल जैसा ऐसा लग रहा था, पूरा शेक हो रहा है, जगह एनवायरनमेंट पूरा शेक हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था. एंड देन स्पेसिफिकली अदर thing I remember is something I've never experienced before is while we were praying in the morning session, Rinki Chichi was coming and praying to everyone. While she touched me, I literally felt like so much heat, like literally ऐसे जहाँ उन्होंने अपना हाथ मेरे पे रखा था, it was like fire. I've never experienced that before, but it was the first time I've experienced ऐसा एक
experience. And then one thing I wanted to share, it's really embarrassing to say, but this is the first time I took one full day fasting. I've always tried to do partial fastings. I've always ended my fasting like 4 बजे 5 बजे. I couldn't go more than that, but कल जब मैंने लिया मुझे पता भी नहीं चला कि पूरा दिन I was fasting करके. So I pray that you guys also pray for me that I'll continue this ऐसा ही. Yes, I also want to thank each and every person who arranged this meeting, because I am really grateful and I am really happy that God actually spoke to you guys for arranging this meeting. It would be always remembered. हम जन्म से विश्वासी नहीं है, हम बाद में विश्वास में आया, बट मैंने प्रभु का आवाज बहुत इग्नोर किया. मैंने इन दिनों में महसूस किया प्रभु रात को बोलते उठ के प्रार्थना कर. मैं बोलती हूँ नहीं प्रभु, थोड़ा सोती हूँ. मैं हर बात को मैं इग्नोर किया, बहुत प्रभु की आवाज को मैंने इग्नोर किया. मुझे पता है आने वाले दिनों में मुझे प्रभु की सेवा करना है, बट मैं बोलती हूँ प्रभु मुझे नहीं करना है. उस यात्राओं को मैं नहीं कर पाऊंगा. क्योंकि हम जन्म से विश्वासी नहीं है मेरे प्यारों. हमें बहुत से कमी है, हम बाद में प्रभु को जाना है. मैं कल से बोला प्रभु मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ बोलना है आपके लिए. प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, मैं पढ़ना चाहूंगी. लूक का 9:23 है. प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इस लाइन को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी. हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु ने बहुत बार कहा कि यदि तुम फास्टिंग करो, यदि तुम प्रार्थना करो, लेकिन इधर एक बात है. प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे. प्रभु ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना अगर कोई चाहे. मेरे प्यारों हम उदाहरण में देखते हैं, अगर प्रभु उस जो उदाहरण तोड़े का दृष्टांत में हम देखते हैं, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 देता है. जिसको 1 देता है वो छुपा के रखता है, लेकिन प्रभु आके उससे वो छीन लेता है. इन दिनों में प्रभु ने सिखाया जो तुझे मैंने दिया है अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो ले लिया जाएगा. मेरे प्यारों प्रभु के सामने इन दिनों में समर्पित किया. मैं प्रभु आने वाले दिनों में मैं तेरी आवाज़ों को सुनना चाहते हैं. बहुत हम प्रार्थना करते प्रभु हमें यूज़ करो, हमें उपयोगी बनाओ, पर हमें नहीं बोलते प्रभु तू क्या चाहता है, तू कैसा चाहता है, किस मार्ग में मैं जाऊं. इन दिनों में नितिन ने जो शेयर किया उसमें से बहुत प्रभु ने मुझे सिखाया है, बहुत उसमें से आशीष मुझे मिला है. उस वचन से प्रभु मुझसे बातें किया. कल पास्टर जी भी बोला तुम संसार में रहते हो, अगर उसके जैसा तुम बनोगे तो एक ऑर्डिनरी पर्सन तुम बन के रहोगे. हमें ऑर्डिनरी नहीं बनना है, हमें प्रभु के लिए खड़े होना है. जो संसार करते, जो लोग करते वो हम नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारों. तो इन दिनों में प्रभु ने बहुत से बातें मुझे सिखाया है. इन दिनों में प्रभु के चरणों में बैठ के और प्रभु से पाने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे. प्रभु को आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे. और पहला दिन शामुएल ने एक बात बोला था. मैं ऐसे अन्य भाषा में कभी कभी बात करती हूँ, मुझे बहुत ऐसे लगते कि दूसरे लोग सुनेगा तो क्या बोलेगा. मुझे एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या बोलेगा लोग, क्या सोचेगा, ज़्यादा आत्मिक हो गया. मैं कभी बोलती नहीं हूँ. तो उस दिन शामुएल ने कहा मुझे भी ऐसा था कि लोग क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, लेकिन पवित्र आत्मा जब सहायता करते, प्रभु ने इन दिनों में बहुत से बातें मुझे सिखाया. मेरे जीवन का एक क्या बोलूँ मैं अभी प्रभु के लिए समर्पित करती हूँ. प्रभु जैसा चाहते हैं मुझे वैसा उपयोग करे. मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कहाँ पर भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ. इन दिनों में आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना कि और भी समर्पण करने के लिए, और भी प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए, उसमें बने रहने के लिए प्रभु सहायता करे. इस मीटिंग को जो अरेंज किया शामुएल, एंजल, रिंकी, लीजो, नितिन, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के नाम की स्तुति हो.
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जैसा 3 दिन मीटिंग अरेंज किया। मैं परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये 3 दिन परमेश्वर का इतना बड़ा उपस्थित था कि मैं बोल नहीं सकती। पहले ही दिन से जब भी मैं आके बैठती थी ऑटोमेटिकली आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो जाता था। समझ में ही नहीं आता था ये क्या हो रहा है, मन खोल कर रोती थी। इतना बड़ा उपस्थिति उस 3 दिन परमेश्वर का था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और कई दिनों से मेरे मन में कई सवाल थे, कई प्रश्न थे जो परमेश्वर के सामने मैं बोल बोल के बहुत रोती थी। जैसे वचन बोला अपना सैमुअल पास्टर ने वचन कहा था कि परमेश्वर के पीछे होना चाहेगा तो उसको अपना क्रूस उठाना है। तो मेरा सवाल था परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैंने मेरे जीवन में जो निर्णय लिया वो मैंने आपके अगुवाई अनुसार किया, आपके इच्छा अनुसार मैं आपके पीछे चला, तो प्रभु इतना स्ट्रगल क्यों मेरे जीवन में? मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रभु क्या उद्देश्य है मेरे जीवन से, इतना स्ट्रगल क्यों मेरे जीवन में? मैं हमेशा इतना परमेश्वर के सामने मैंने कुड़कुड़ाया, बहुत कुड़कुड़ाया कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, क्या मुझसे हुआ जो इतना स्ट्रगल। ऐसा नहीं है, एक लड़की के लिए जो आशीष चाहिए वो सारा आशीष परमेश्वर ने मुझे दिया, कोई चीज़ का कमी नहीं रखा। फिर भी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों? तो वचन से परमेश्वर ने बात किया, अगर मेरे पीछे होना चाहेगा तो तुम्हें क्रूस उठाना है। वो क्रूस आपकी परिस्थिति हो सकती है या कोई भी बात हो सकता है, वो क्रूस को उठा के वो भी आनंद के साथ उसको एक्सेप्ट करना है। वो क्रूस को आनंद के साथ एक्सेप्ट करते हुए हमें उसके पीछे जाना है। मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और मैं हमेशा परमेश्वर को बोलती थी कि मुझे चुना, मेरा उद्देश्य क्या है परमेश्वर। तो एस्तर से परमेश्वर ने बात किया कि एस्तर ने उस राजमहल में, जो जिस उद्देश्य के लिए उस राजमहल में एस्तर को खड़ा किया अपने प्रजा के एक छुटकारा के लिए, उसी रीति से परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मुझे भी परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए चुना और यहाँ पे खड़ा किया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने बात किया और मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर भर भर। कई दिनों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ पर ऐसा नहीं होता था। फिर ब्रदर नितिन के थ्रू वचन से बात किया परमेश्वर ने कि नया दाखरस अपने पुराने मशरों में नहीं भर सकते। हमारे अंदर कितनी वो पुरानी बातें, कितनी कुछ नफरत की बातें हो सकता है, कुछ गुस्सा का, कुछ ऐसे मन में एक बोझ लेके हम बैठे हैं और परमेश्वर से मांग रहे कि मुझे नई आत्मा से भर। परमेश्वर कैसे भरेगा? उस परमेश्वर ने बात किया कि उसे हमें एक नया बनाना है, एक नया मन अपने अंदर उत्पन्न करना है, तभी परमेश्वर वो नया दाखरस हमारे अंदर भरेगा। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मैंने एक नयापन को महसूस किया। मैंने सारे ऐसा एक भारी बोझ जैसा मेरे ऊपर से उतर गया और एक अंदर एक नयापन मैंने महसूस किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अपना ये 3 दिन का जो मीटिंग था, इसके पहले 2 दिन पहले ये 3 दिन के मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया 2 दिन पहले। मैंने एंजल से भी शेयर किया था कि एक लकड़ी जो एक इंसान लेके चल रहा है, एक सूखा लकड़ी है, वो अपना बोझ लेके उस लकड़ी के ऊपर चल रहा है। फिर बाद में वो लकड़ी उठा के वो फेंक देता है कि ये कुछ काम का है नहीं है। तो फिर एक मनुष्य आके उसको उठाता है और वो पानी डाल के फिर से वो हरा भरा, उसका जो भी सूखापन है उसको निकाल देता है, निकाल के उसके ऊपर पानी डाल के उसे हरा भरा करता है। मुझे समझ में नहीं आया, पर जैसा ये 3 दिन मीटिंग हुआ, परमेश्वर ने दिखाया कि वो सूखापन को निकाल कर, जो भी उस पर जमा हुआ था वो सारी अशुद्धताओं को निकाल कर परमेश्वर अपनी आत्मा का जल डाल के उसे फिर से नया और मजबूत किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस दर्शन के लिए, कि मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे नौजवान
पे सभी पे परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला, मैं विश्वास करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा मीटिंग अरेंज करने के लिए दिया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे कि लास्ट 3 डेज़ हम सभी फास्टिंग में थे, मैंने सिर्फ लास्ट डे ही फास्टिंग लिया था। तो फर्स्ट डे जब प्रेयर में गई थी एकदम नॉर्मल था, ऐसा जस्ट गई और आई, वैसा वाला फीलिंग आया था मुझे। फिर सेकंड डे जब गई, एक बहुत बड़ा बर्डन आ रहा था कि परमेश्वर के राज्य के लिए मैं क्या कर रही हूँ करके। तो उस टाइम पे बर्डन आ रहा है बट रोना आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, बिल्कुल आंसू नहीं थे बट इतना बोझ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत रो। बट पता नहीं, मैं परमेश्वर से बार बार पूछ रही थी कि किस चीज़ के लिए बर्डन दे रहे हो, क्या चीज़ है, किसे मुझे बचाना है, किसे वचन देना है करके मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी। एंड फाइनली मैंने एंजल चेची को बोला कि मैं आपको दूसरे दिन बताऊंगी, थर्ड डे, कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं, अब भी बता के आप जाओ तो फिर मैं सॉल्यूशन दूंगी, तो प्रिपरेशन के साथ आप आ पाओगे। तो उनको मैंने बताया कि ऐसा बर्डन आ रहा है बट मेरे आंखों से आंसू ही नहीं आ रही है, मेरे को रोना भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, क्या चीज़ के लिए प्रार्थना करूँ। उनको सारी सजेशन मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि रात को जाके प्रार्थना करो, कल देखना परमेश्वर भरपूर बहुत आयत से तुम्हें भरेगा। तो थर्ड डे जब भी मैं आई, आके नॉर्मल वैसा ही था, प्रार्थना कर रही थी। एंड सडनली जब रिंकी चेची मेरे लिए फर्स्ट प्रार्थना करने आई, उसके पहले मैंने जस्ट रिंकी चेची का नाम सोचा था कुछ रीज़न से, और जब ही प्रार्थना करने आई तो मैंने देखा पहले वो मेरे लिए प्रार्थना करने आ गई थी करके। और जब भी उन्होंने मुझे हक करके मेरे लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया, इतना रोई, जो सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी वो रिंकी चेची ने भी मुझे बताया। उसके बाद बहुत रोने के बाद मुझे परमेश्वर ने एक वर्स दिया, मैं वो पढ़ के बताना चाहती हूँ। जर्मिया के 42 वर्स 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर इज माई सर्वेंट whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him and he will bring justice to the nation. ये चीज़ उन्होंने मुझे पकड़कर उस समय कहा, और ये चीज़ सिर्फ उन्होंने नहीं, पहले भी 2 पास्टर, दिल्ली के कैंप में भी मैं जब भी गई थी, एक पास्टर ने मुझे ये कहा था। इनफैक्ट किसी के घर पे प्रार्थना हो रहा था, ये वचन ही मुझे दिया गया था। एंड ये 3 टाइम मुझे ये सेम वचन मिलके मेरे को कंफर्मेशन मिला इस टाइम कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ना है। मैं कितना भी पीछे हटूँ, कुछ भी करूँ, परमेश्वर मुझे वापस से लेकर आएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सभी मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर में मुझे बने रहने परमेश्वर सहायता करे और आगे बढ़ पाऊँ, और पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ। जब भी रिंकी चेची ने मुझे प्रार्थना किया, उस टाइम पे उनके अंदर जो होली स्पिरिट थी वो गर्माहट पूरी मुझे महसूस हुई, उसके साथ मैं रोई। और उसके बाद भी जब भी मैं बैठी थी, आराधना चल रहा था, वापस से मैं घर पे नहीं गई थी, वापस चल रहा था, एंजल चेची मेरे बाजू में आई। वो भी मेरे बारे में, जितना मेरे बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, पर उन्होंने होली स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर ने उनसे जो बात किया, मेरे जीवन के बारे में हर एक चीज़ उन्होंने कहा। और सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग मुझे ये लगा कि मैंने बहुत सारी प्लान्स किए परमेश्वर के राज्य के लिए कि ये करेंगे वो करेंगे, बट वो 6 महीना होता है, कुछ टाइम होता है, उसे हम लेफ्ट करते हैं। तो इस टाइम मैंने जो निर्णय परमेश्वर के सामने दिया है, मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। अपने आप को कि परमेश्वर की जो इच्छा हो वो मेरे जीवन में वो पूरा करे, उससे मैं पीछे ना हटूँ। इसके लिए सभी प्रार्थना कीजिएगा। आमीन। Praise the Lord. Last 3 days, I count these last 3 days as the most blessed days of my spiritual life. This last 3 days, God has been speaking to me. He was rekindling the fire inside me. He filled me with His Spirit. He helped me. He strengthened me to take complete 2-day fasting. I usually feel weak and dizzy. I sometimes fall down if I don't take my 2 meals continuously. But this was for the first time. God strengthened me to take full day fasting. I didn't plan to take fasting. I didn't even plan to attend these meetings because I was having exams. I'm having exam day after tomorrow, and I have a lot
a lot to study. I was worried, but I gave everything into God's hands, and I spent most of my time praying and spending my time in worship and in these meetings. But even though my flesh was very I was very hungry, and I wasn't able to study, but God filled me with spirit. I was full in my spirit. God gave me this desire that I need double portion of anointing in these days. And I was praying, and every word that was spoken in these meetings were directly spoken to me. It reached my heart, my hardened heart. God changed it to a heart of flesh. I prepared another verse to read today, but since I came this morning, repeatedly I am hearing this voice in my head: I will pour out my spirit, I will pour out my spirit. And this verse came into my mind, Joel 2:28, and it was reconfirmed here in the worship. I would like to read that verse. Joel chapter 2 verse 28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. I would request everyone to pray for me and my brother, and for my sister, and for my entire family in this coming days. I request your prayers to fill my cup with spirit, overflowing cup until it overflows. Please keep me and my family in your prayers. पिछला 3 दिन मेरे जीवन का बहुत आशीषित दिन था। छोटा सा गवाही है। 2 साल पहले 30 अप्रैल 2022 को मुझे फर्स्ट टाइम गिफ्ट ऑफ थैंक्स मिला था। वो एक्सपीरियंस, वो होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस, उसके बाद मैंने कभी वो प्रेजेंस फील नहीं किया। तो जब मैंने देखा कि 3 दिन का मीटिंग है और उसका थीम ही होली स्पिरिट अवेकनिंग है, तो मैंने बोला मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊंगी। दूसरे दिन प्रार्थना में मैं बैठी थी, फिर से वही सेम एक्सपीरियंस, जो प्रेजेंस था होली स्पिरिट का, फिर से मेरे को गिफ्ट ऑफ थैंक्स का मेरा वापस मुझे होली स्पिरिट का प्रेजेंस फील हुआ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आग उन्होंने मेरे जीवन में डाला है वो कभी घटने के लिए अनुमति ना दे। इसके लिए आप सब प्रार्थना करना। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So, I wanted to share this testimony in my upcoming cottage prayer, but I got the leading that this testimony is connected with the feeling that I had in the past few days. So, for the past 3 weeks, I had really bad migraines. It was so bad. I could not sleep, I could not go to school, I could not even eat. Everything that I used to eat, I used to vomit it out, and it was such a bad feeling. And then usually whenever I get these really bad headaches, I would depend on medicines, I would depend on Crocin, I would depend on any painkiller that would get this headache out of me. But for the first time, I wanted to put this burden on God, and I wanted Him to deliver me from this headache and from this migraine. So I just kept praying, and one day last week in my individual prayer, I truly just commanded this migraine to completely leave me. I just did not want this suffering to be within me anymore. I just wanted to completely get out of it. I screamed to God, Lord, please deliver me from this. And there was just instant quietness in my head. There was just instant
calmness, and I just could not feel anything anymore. And I was just so happy that God healed me. And I just got out, and I just hugged my mom, and I was like, Amma, I'm healed. So it was just such a blessed feeling. But then a few days later, again it happened, and then I just spoke to my parents, and I was like, Amma, acha, why is this happening to me? Like, I was completely healed. Why is this coming back? But then my mom, she was so worried for me, and she said that, like, just have medicine. The medicine comes from God also. And I said, I know, Amma, I know it does, but I still believe that God is there with me. I still believe that He can deliver me from this. I was so adamant, I was so stubborn. I did not want to give up on this healing. So I just continued to pray. And then we went to a neurologist last week. We went to 3 different doctors because I wanted to know what was wrong, but I still wanted to put that petition to God. And the neurologist said that, okay, this is migraine. Like, if this is prolonging, if this has been going on for a really long time, it's definitely a migraine. It will go in 2 months. I just looked at it, and I was like, I'm not waiting for 2 months. I can't wait for 2 months in this suffering. And then he handed me a list of precautions, like triggers for migraines. For example, light, sound, perfume, strong perfume, all of that. But the very first point was avoid fasting. And while I was in front of him, I was like, how is this possible? This can't be possible. This will not be possible. So this will go by fasting only. So in this 3 days prayer, in the last day, I did a full day of fasting, and there was not even a doubt in my head, what if it comes back if I fast? What if it comes back if I skip a meal? There was no doubt, because I know that fasting is for the Lord and He will heal me. And I just completely was healed, and now there's just so much peace in my head, so much peace in my life. I truly thank God for it. And for a while now, I was praying for visions. I wanted God to communicate to me through visions. And as I was praying yesterday in the prayer, I just saw myself at the end of the tunnel. And then I was just thinking, I was thinking that, I was praying for my migraines, I was praying for my family, everything. And then I just saw the end of a tunnel. And when I looked down, there was pure darkness. There was nothing. And I was like, Lord, why are you giving me this vision? Why do I see only darkness? And then I kept looking down. I was in grief. I was just praying for the meaning of this vision. And then suddenly, when the vision zoomed out, I saw myself in God's hand. So the darkness was me inside His fist. And that truly, truly, truly blessed me so much. He truly never let go of my hand, even during these 3 weeks. I thank the Lord for delivering me. I pray that I ask for all of your requests to just continue to pray for me and my family. And amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. I thank God for giving me this opportunity. I wasn't going to share my testimony because there are people who have experienced more than what I have, and I want to give them more time, so I'll make it very short. I want to glorify God for the burden that He has given our youth leaders, because each person who shared a message, it pierced my heart. It changed me fully and completely and thoroughly. And I want to thank God so much for just speaking to me so clearly. There are too many visions that I saw, and I cannot cover all of them in this time. But one thing I want to say is that I wasn't as prepared for this meeting as I should have been. There have been other meetings where I was even thirstier for God, and there I did not experience as much as this. I wasn't as thirsty for this meeting, but I had a big burden for others, not for myself, but I had a big burden that God, please touch others, please touch every youth who's attending the meeting. These days I've been very busy. I've been extremely busy, so I did not even have much time to worry about myself. I was just praying to God that please let every youth who's attending there offline, let all of them be touched on the first day itself. Hallelujah, hallelujah. I was having a big burden for them, and everything, all of our prayers got answered. So I'm really happy. I want to thank God for that. One thing I want to say is that the first 2 days I joined online, and first day I did not experience much because I was very distracted. The second day was completely, it changed my heart. I wasn't going to fast for the full day on Saturday, but the meeting on Friday gave me a confirmation that I should fast for the full day. It was my first time as well. And
And on the third day when I came, so there was a prayer at 11 a.m. I usually take some time. I had to warm up in Holy Spirit. It takes time to warm up. It takes time to start speaking in tongues, and it takes time to hear God's voice. But as soon as I stepped in the room, I felt God's presence. And as soon as I sat down, I started speaking in tongues. And within a short while, I saw, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In a very short time, I saw a big light in front of me walking towards me, and when I saw that, I wanted to disappear. I just didn't want to. I didn't want to be. Because I do not deserve being in front of God. That really convicted me, and I just wanted to disappear. There are many plans God has for me, and there are many things I'm working on right now. But in that moment, I wasn't thinking of anything. I just wanted to go with God, and I wanted to leave everything behind. And in that time, Rinki Chechi also came and prayed over me, and it was just such. It was the best moment of my life. This will definitely be remembered. And hallelujah, I really thank God for the wonderful testimonies that you're going to hear as well. And there's one thing that stood out, that the reason why I wanted to say this testimony is that God, this one thing God spoke to me, not just for me, amongst the many things that God spoke to me only, there's one thing that He spoke for all of us that I want to share, is that He told me to tell all of you that God will give our lost desires back. I heard this very clearly, that you all are going to get your lost desires back, and I did not even know what this meant, but this means that from our youth, from our childhood, we have so many desires. We want to do so many things, and we forgot so many of them. But God listens to our every desire. He wants to give all of them back, and He will make it true. He will make it to completion. He will give it to us. And that was such a clear and powerful message that I got. So I wanted to share that with all of you, and I just thank all of you for your time, and thank you all for your prayers. Thank you, Jesus. Amen. check. Hallelujah. Praise Lord. ये 3 दिन के मीटिंग में मेरे को बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है. मैं पहले बहुत सारी मीटिंग अटेंड करता था, पर ऐसा मेरा माइंड ऐसा डिस्ट्रैक्ट होता था, मैं कुछ भी सोचता था, मैं ऐसे प्रे करके आ जाता था. ऐसा मेरे साथ हर बार होता था. पर दिस टाइम कि फर्स्ट डे में जब मैं अपर रूम एंटर किया, तो मैं एकदम, मेरा हार्ट एकदम खाली सा था, मैं एकदम सूना सा था. मतलब ऐसा मेरे को लगा कि समवन कोई मेरे को, मतलब कोई पूछने वाला कोई ऐसा कुछ है नहीं, मैं ऐसे अकेला हूँ. बट जब प्रेयर स्टार्ट हुआ, मैं प्रार्थना करना चालू किया, सब लोग प्रार्थना चालू किए, तो तभी मेरे अंदर एक आग जैसे से गर्माहट फील हुई. तो मैं तभी धीरे धीरे कुछ बोलने लगा, पर मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. पर मेरे को डर भी लग रहा था कि कोई जज करेगा, क्या सोचेगा. तो तभी मेरे बारे में ये चल रहा था कि सैमुअल भैया ने बोला कि शायनेस, ईगो को साइड में रखो. और फिर सेकेंड डे मैं प्रार्थना किया, थर्ड डे फिर मेरे को नितिन भैया की एक बात याद आई कि लोग जिसको जो जज करना है वो जज करेगा, पर जो जज करने वाला है वो गॉड फादर, वो जज करने वाला है. तो और तभी से मैं और कॉन्फिडेंस हुआ, और थर्ड डे में मैंने अन्य भाषा को पाया है. और मेरे को माइक फियर भी था कि मैं डरता हूँ कि मैं माइक से बोलने में बहुत डर लगता है कि क्या बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा. पर मेरे को एक वर्स मिला है, लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ, द लॉर्ड इज़ माई रॉक, माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवर. तो ये कह के मैं बंद करना चाहता हूँ. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. तो प्रभु ने बहुत पहले मेरे को एक सॉन्ग लिखने के लिए सहायता किया था, और आज मैं आते टाइम ही गॉड मेरे को बोल रहा है कि वो चीज़, मतलब जो मैंने तेरे को दिया है
वो तू जब तक नहीं रहेगा तू फिर मेरा मतलब नहीं है कि वो देखे। सो मैं वो एक 4 लाइन है वो मैं गाना चाहता हूँ, पूरा नहीं गाऊंगा, रिलीज करना। आराधना मैं करूं तेरी स्तुति और जय जयकार करूं, आराधना मैं करूं तेरी स्तुति और जय जयकार करूं। योग्य है मेरे पिता, योग्य हर स्तुति का, तेरी ही आदर मैं करूं। ओ योग्य है मेरे पिता, योग्य हर स्तुति का, तेरी आदर मैं करूं। या प्रेज़ लॉर्ड। मैं कहाँ से स्टार्ट करूं मेरे को नहीं मालूम। मैं जब सैमी मेरे को बोला ऐसा 3 दिन का मीटिंग है, मेरे को उसके बीच में बहुत सारा ऑब्स्टैकल्स आ रहा था, जैसे कि मैं इंटरव्यू दिया, मेरे को जॉब मिला, एंड बट वो टाइम पे भी गॉड मेरे को ऐसा बोल रहा था कि तू अगर ये मिस किया तो बहुत बड़ा मिस कर रहा है तू। और मैं सोचा कि मैं अटेंड ही करूँगा, और सैमी ने तीसरे दिन का वर्शिप भी मेरे को दे दिया। एंड मैं उसको बोल रहा हूँ भाई कि मैं योग्य नहीं हूँ ये चीज़ के लिए। नॉर्मल यूथ मीटिंग तो ठीक है भाई, ये तू ऐसा तू दे रहा है और तू ऐसा एक इनिशिएटिव दे रहा है कि तू गाइड करने बोल रहा है। एंड मैं तभी भी मेरे को मन में यही आ रहा है कि मैं योग्य नहीं हूँ पिता। लेकिन गॉड ने वो 3 दिन जो था, पहले दिन मैं आया एंड इट वाज लाइक नॉर्मल। सेकेंड डे हुआ व्हेन हम लोग वर्शिप लीड कर रहे थे, तभी डैनी लीड कर रहा था। मैं स्लोली वो प्रेजेंस फील करने लगा फिर से। और मैं जब घर पे गया एंड मैं प्रभु से पूछ रहा हूँ, 3 दिन से लगातार पूछ रहा हूँ, प्रभु मेरा वर्शिप है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है ऐसा। एंड मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं ये किसी के लिए योग्य नहीं हूँ। एंड मैं और फ्राइडे नाइट को मैं जब बैठ रहा था, मनन कर रहा था, उस टाइम पे गॉड ने मेरे को एक वर्स जो कि मैं पहले ही अंडरलाइन करके रखा था, लेकिन वो चीज़ में ज़्यादा मैं गो थ्रू नहीं किया, लेकिन गॉड ने वो चीज़ हाईलाइट करके मेरे को बताया। दैट इज़ लूक 3:22, यू आर माई बिलाउड सन, विथ यू आई एम वेल प्लीज्ड। एंड मेरे को नहीं मालूम, मेरे अंदर एक ही इच्छा था, प्रभु मैं उधर खड़े रहूँगा तो मेरे को आपके स्पिरिट में फिल्ड रहना है, क्योंकि जब तक मैं फिल्ड नहीं रहूँगा कुछ नहीं होएगा। एंड तीसरे दिन के जो मीटिंग पे सुबह मैं और जैसे कि हमने एक डिज़ायर्स भी रखे थे, स्पिरिचुअल डिज़ायर्स। सो मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे को एक डिज़ायर भी चाहिए, मेरे को भी एक और ब्लेसिंग चाहिए, एक और होली स्पिरिट का गिफ्ट चाहिए। एंड मैं स्पेशली प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग के लिए प्रे कर रहा था। एंड उसी मोमेंट पे सैमुअल पास्टर मेरे को आके बोले कि लाइक इफ़ यू बिलीव वो रेलम खुल गया है, तू अगर वो रिसीव करेगा तो तू वो प्राप्त कर लेगा। एंड आई एम लाइक वो मेरे लिए था। काफ़ी चीज़ें उस दिन प्रभु ने पास्टर्स लोग से, एंजल चेची से, सबसे बात कराया है मेरे से।
वो सब जो भी था वो मैंने पहले भी बहुत सारे लोग मेरे को बोले हैं। एंड लास्ट में चेची ने भी एक बात बोला था कि बहुत बार प्रभु ने तेरे को बोला है बातें, लेकिन तू वो ओबे नहीं कर पा रहा है। सो कल मैंने एक डिसीजन लिया कि लॉर्ड, अगर ये जो अभी मैं 21 का हूँ, अभी जो आने वाला जो टाइम है, वो जो अब जो बोलोगे वो मैं फॉलो करना चाहता हूँ। ना ही मेरा कोई डिज़ायर या फिर मैं जो सोच रहा हूँ कि मेरे को इधर चाहिए, इधर जॉब चाहिए या कुछ भी, वो कुछ नहीं। अब जिधर मेरे को रख रहे हो उधर मैं रखना चाहता हूँ। तो यही मेरा प्रार्थना है। मैं चाहता हूँ कि अब भी मेरे लिए प्रे करें, आने वाले दिन मेरे लिए और आशीषित रहे। और या प्रेज गॉड, या मैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी गवाहियों को सुनकर मेरा दिल तो इतना आनंदित हो रहा है, मैं पता नहीं इधर अपने आप को कैसे एक जगह पे खड़े रख पा रही हूँ, पर मेरा दिल तो अंदर बहुत ज़्यादा नाच रहा है। मुझे इतना नाचने का मन कर रहा है, बट हम थोड़ा कंट्रोल करके खड़े हैं यहाँ पे। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि ये जो एक बेदारी जो परमेश्वर ने हमारे नौजवानों में शुरू की है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन और आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा। आप अगर ताली बजाकर दे रहे तो और ज़ोर से बजाइए, हालेलुया, आमीन। और मैं जो है यहाँ पर आने नहीं वाली थी गवाही देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर से एक मैंने बात कही थी और वो पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी आगे। तो जब मेरा बपतिस्मा हुआ था तो मुझ पर एक ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि कई सारी वरदानों से परमेश्वर मुझे भरेंगे, और उनमें से एक था भविष्यवाणी का वरदान, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। और ऐसा नहीं है कि मैं इतने सालों से बैठकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो गिफ्ट चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं, कभी नहीं किया था। और प्रभु की दया से एक कल आई थिंक सो लास्ट वाला जो मीटिंग था, उसमें हम सब जब प्रार्थना कर रहे थे, और वो बहुत ही एक अद्भुत समय था, और इतना भारी प्रभु का उपस्थिति वहाँ पर था। हर एक के ऊपर एक ऐसे अलग अलग बादल बनकर परमेश्वर की उपस्थिति उन सब पे गिर रही थी। और तो जब हम सब के पास जाकर प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर एक अंदर से एक बहुत बड़ा एक ऐसे धक्का कोई मार रहा है मुझे, जैसे पवित्र आत्मा जैसे जा उसके लिए प्रार्थना कर जा। और मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं हाथ रख के नहीं प्रार्थना करूँगी, मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं उसके योग्य नहीं हूँ, ऐसे सब सोच के मैं अपने आप को सीमित कर दी। फिर भी अंदर से एक बहुत ऐसा बड़ा सा एक धक्का कि मैं अपना हाथ खुद से जाकर रख नहीं पा रही थी, पर पवित्र आत्मा लेकर जाकर मेरा हाथ लोगों के ऊपर रखकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए बहुत सारी वाणी को बताने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। घर पहुंचकर मैं और नितिन से बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने मुझे ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी दिया है, ऐसा लोग परमेश्वर ने मुझसे बातें किया ये सब लोगों के द्वारा। तो नितिन ने मुझसे पूछा कि ये कंफर्म है क्या तुझे कैसे पता कि ये परमेश्वर की ही वाणी है, ये परमेश्वर की आवाज़ तूने सुनी है करके, मुझे ये अनुभव करना, मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि वो सारा जो आवाज़ हो रहा था, जो सब शोर सब हो रहा था, उसके बीच में एक क्लियर, एक धीमी आवाज़, वो है पवित्र आत्मा की आवाज़। तुम्हें कोई और व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तुम्हें वो एक स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगा। भले तुम कितने भी शोर में हो, तुम कितने भी केओस में हो, कोई भी अवस्था में हो, वो एक धीमी आवाज़ को तुम सुनोगे, वो है पवित्र आत्मा की आवाज़। फिर भी मेरे मन में एक शंका है कि सच में मुझे मिला है क्या, ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी मिला है क्या। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, वो मिलने से पहले मैं गवाही नहीं दूंगी, जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा मैं गवाही नहीं देने वाली हूँ। कल रात को भी नहीं मिला कन्फर्मेशन, आज सुबह भी नहीं मिला, यहाँ पर जब पास्टर ने हमको बुलाया तभी भी नहीं मिला। मैं बोली मैं तो नहीं जा रही हूँ, मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिला है, मैं नहीं जाकर उधर बोलने वाली हूँ, मैं झूठी गवाही नहीं दूँगी। फिर एक एक कर यहाँ पर सारे हमारे बच्चे जो है इतनी प्यारी प्यारी गवाहियों को बांट रहे थे, और परमेश्वर ने मुझसे एक वचन से बात किया, और वो है पहला तिमोथी उसका 4 उसका 14, एक्चुअली उसके पहले वाले वचन से बात किया है, पर ये आगे जब मैं पढ़ रही थी तभी ये वचन मुझे मिला कि मैं हिंदी में पढ़ती हूँ।
उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत कर. Do not neglect the spiritual gift you received through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. और ये confirmation मिलने के बाद मैं तो रुक ही नहीं पाई और मैं दौड़ी चली आई आगे कि मुझे भी मेरी गवाही को बांटनी है. तो ये बात मैं सारे नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि उसी का ऊपर का जो वचन है, I think the 12th verse, do not let anyone think less of you. मैं सब जो आज जो गवाही दे हर एक जन से कहना चाहती हूँ, do not let anyone think less of you because you are young. Okay, be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith and your purity. तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो हमारे सारे नौजवान हैं, सारे जो बच्चे हैं, परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर ने एक नया बर्तन बनाकर, एक नया मिट्टी का बर्तन बनाकर रखा है. अगर आप जानते हो तो एक नया जो मिट्टी का बर्तन होता है वो बहुत कोमल होता है. उसे छुओगे या फिर उसे कहीं भी अगर गिर गया तो उसमें मोड़ या फिर एक डेंट जैसा पड़ जाता है. तो मैं सारी कलीसिया के एल्डर्स से ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मैं प्रार्थना मांगती हूँ, आप हमें प्रार्थना में याद रखकर हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए कि वो बर्तन, आपकी जो प्रार्थना है वो हमारे लिए वो गर्माहट की तरह है जहाँ पर वो बर्तन जो है वो मजबूत बनेगी. तो मैं आप सभी की प्रार्थनाओं को मांगती हूँ और मैं आगे एंजल और सैमी को समय देती हूँ और मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा और हमें टाइम दे दे. हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारी गवाहियों को बांटने के लिए और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे मेंटर्स हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है. सैमुअल और एंजल और लिजो और नितिन जैसे ऐसे मेंटर्स हमारे जीवन में दिया है. दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे युवक के लिए, नौजवानों के लिए प्लान करते हैं. एक उनको छोड़ते नहीं हैं, वो पीछे पड़े रहते हैं. नहीं, तुमको ये करना ही है, तुमको वो करना ही है. मैं और नितिन कई बार लियो का एक्सक्यूज़ लेके निकल जाते, बच जाते हैं, पर बाकी सब जो नौजवान हैं उनको वो कान पकड़कर बराबर सही रास्ते में वो लेकर आते हैं. इसलिए उनको हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि उनको अद्भुत रीति में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं. आमीन. Praise the Lord. As you all have heard that it was a blessing these 3 days. I want to say this, that there was a long time people were asking me to share the word. Always I said no because there was a reason behind it. I did not want to fake. I did not want to speak of my own mind. I wanted God to speak through me. So always I'd said no because I felt in my heart, no, if I stand there, I'll speak of my own heart. So I always said no, I'll not take that. Even this time when Sammy said that you have to share the word, I was going to reply, no, I can't, I won't do it. But Holy Spirit spoke in my heart, don't say no this time. Then I said, okay Lord. I did not reply anything to that. I was just praying. Even during that prayer, I was saying that, Lord, please, Lord, I don't want to speak anything that does not come from you. I want you to use my mouth. I want you to speak, Lord. I don't want to boast. I don't want spiritual pride to come in my heart. I don't want all those things in my heart, Lord. I don't want to fall in that. That's why I can't share the word. But Holy Spirit kept strengthening me. And on the last day, the day when I shared the word, even when I was going to share, even at that time I had that same thought. I don't want to speak anything from my mind. I don't want to speak anything from my mind. And my hand was shivering. I think Rinki noticed that. When I was standing there, my hands were shivering when I was standing there. Because I had a stage fear. So I was not able to speak. But once the message started, it just kept on flowing. I did not know. I had kept a note of what all I need to speak because I forget things easily.
So I kept a note what all I need to speak and what the points and Bible verses. I did not speak the entire thing what I had kept a note of. I believe God spoke whatever He needed to speak. After the message was over, I realized that I missed out on some things. Oh, I forgot. I should have said that. But later, when Pastor started speaking, he repeated the exact same things that I missed. That is something that God taught me, that even if you forget something, I'll speak to my people and I'll use someone else. So I praise God that He gave me this chance to speak. And I request you all to please pray for me that I can continue in this anointing and I can continue serving God truthfully, genuinely. This is my prayer to God, that I want to be a genuine servant of God. I request you all to please pray for me. And after sharing the word, when we were all praying, Samuel Pastor came over to me and said, Kodumbamai Devela Cheyun. He said, you will serve as a family. You will serve God as a family. I believe that has already started. I praise God for that. And I thank you all the leaders who have arranged this meeting. It is truly a blessing. Praise God for this. Thank you. परमेश्वर की नाम की महिमा हो. First of all, I would like to thank God, the Holy Spirit, जो ये सब कुछ किया. ये हमारी योग्यता नहीं, ये हमारी काबिलता नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास कहने के लिए, लेकिन ये जो कुछ किया सब कुछ पवित्र आत्मा ने किया है. एंड आई थैंक हॉली स्पिरिट फॉर ऑल दिस वंडर्स जो हमारे बीच में किया. और स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहती हूँ सैमी के लिए. गुजरात से परमेश्वर उसको इधर लेकर आया ताकि हमारे बीच में एक रिवाइवल हो. परमेश्वर सही समय पर सही व्यक्तियों को सही जगह पर पहुँचाता है. आमेन. थैंक यू सो मच. उसके बाद नितिन, रिंकी, लिजो, सबको, और स्पेशली पास्टर अंकल एंड फैमिली को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. जो एक प्लान हम कह देते हैं तो पास्टर फिर ओके 100% हमें छोड़ देते हैं. उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. हमें इतना फ्रीडम देकर, हमारे पीछे सपोर्ट करके एक ऐसा पास्टर एंड फैमिली हमें मिला है. पूछते भी नहीं है क्या प्लान है, कैसा है, बट 100% हम पर डिपेंड करते हैं. जब हम बुलाते हैं सब कुछ छोड़ के हमारे साथ आ भी जाते हैं. तीनों दिन पास्टर अंकल के इस बिजी स्केड्यूल के बीच में भी हमारे साथ रहा, हमारे लिए वचन दिए, संदेश दिए, हमें कन्फर्मेशंस कराए. आंटी भी दोनों हमारे साथ में थी. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. फिर ख़ास तौर से सैमुअल तंबी पास्टर है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही हमने उनसे शेयर किया, जब अपना बर्डन उनसे शेयर किया, वो तुरंत रेडी हो गए. हमारे प्रिपरेशन प्रेयर्स थे उसमें वो आए. उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. फिर ब्लेसी चेची, सुनील, ब्लेसी चेची और सुनील ब्रदर दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद. चेची ने भी छुट्टी लेके हमारे साथ में आए. और सारे नौजवान बहुत धन्यवाद देती हूँ. जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्रोच किया तो बहुत सारे लोग मुझे इंटरेस्ट नहीं थे, ऐसे ऐसे मैसेजेस आए, लेकिन परमेश्वर ने सबको लेकर आया. और जिन्होंने मिस आउट कर दिया, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं मिस आउट कर दिया, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपका इससे बड़ा समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू, ग्रेटर दैन समथिंग दस आपके लिए इंतज़ार कर रहा है. आप मिस आउट नहीं हुए हो. आप जो आए हैं लेकिन गवाही नहीं दे पाए, उनसे मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके अंदर बीज बोया है. आने वाले दिनों में आप बड़े बड़े कामों को देखोगे. और माता पिताओं से मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे रिंकी ने कहा, परमेश्वर ने ये आग जो हमारे अंदर जलाई है, इस आग को कंटिन्यू करके रखने में, इस आग को और जलाने के लिए आप उसके अंदर तेल डालते रहे, उनके अंदर और फ्लेम देते रहे, ताकि इस आग को इन बच्चों ने जो यहाँ पर वैल्यू देकर प्राप्त किया है, इसे बनाए रखे. हालेलुया. क्योंकि वचन का ये जो है, ये वादा है, ये पवित्र आत्मा की वादा हमने प्राप्त किया है, ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट हमने प्राप्त किया है. ऐसा ग्रेस जो हमारा मेरिट देखकर हमें नहीं मिलता, हमें गिफ्ट में मिला है, मुफ्त में हमें ये सब मिला है. लेकिन एक रिक्वेस्ट है, हमें वैल्यू देना पड़ेगा, कीमत चुकाना है. വില കൊടുക്കണം. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ വില കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, वहाँ पे अपने जीवन में अपने आप को कीमत देना है अपने बच्चों के लिए. क्योंकि वादा ऐसा है कि तुम्हारे बेटे भविष्यवाणी करेंगे, जवाने सपने देखेंगे, लेकिन जो पुरनिया है,
जो बड़े हैं वो क्या करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो इन बच्चों का फ्यूचर का दर्शन आप देखकर आत्मा के मंडलों में उन रेलम पर जाकर इन बच्चों का फ्यूचर आप आत्मा में देखकर आत्मा के साथ इनसे डील करें, क्योंकि ये बच्चे अभी आत्मा के रेलम पर पहुंच चुके हैं, ये आत्मा के रेलम पर कदम रख चुके हैं, अभी इनको डील आत्मा में करना है। तो उसकी आपकी बहुत सहायता है, कलीसिया की प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। मेरा वही रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना मांगते हुए वचन ये बंद करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരുടെയും സാക്ഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖം ഇച്ചിരി ചിരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു. अच्छी गवाहों को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया. എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന്. सारी महिमा परमेश्वर को. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഈ 3 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന, ये 3 दिन की उपवास प्रार्थना, ഈ ശനിയാഴ്ച ഇന്നലെ നടന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം. कल एक बात हुआ मैं बताना चाहता हूँ. നിങ്ങളോർക്കും ഞങ്ങളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭയങ്കര സ്പിരിച്വലി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് ശരിയാ. ഞങ്ങളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ നടക്കും, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും ചെറിയ വഴക്കുകളൊക്കെ നടക്കും. हमको लगता होगा कि हम हमेशा प्रार्थना करते ही ऐसे चलते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते वो तो सही है, लेकिन हमारे बीच में भी कभी कुछ होता है. ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അറേഞ്ച്മെൻ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പർ റൂമിൽ. कल हम और उपवास प्रार्थना की अरेंजमेंट कर रहे थे. ഞാൻ, ഡാനി, ജെൻസൺ, കിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കിൻസ്, ഞങ്ങൾ, സാമി, ഏഞ്ചല്, ഞാൻ, हम लोग सब लोग थे, डैनी, जेंसन, किन, सैमी, मैं और लीजू. ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഒരു കസാര ഇട്ടതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. हम अरेंजमेंट कर रहे थे, उसमें एक कुर्सी डालने का एक छोटा सा प्रॉब्लम, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം, छोटी सी एक प्रॉब्लम. എനിക്ക് ഇവരോട് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഏഞ്ചലിനോട് സ്വാമിയോട് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. हम कभी कभी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो सबको पसंद नहीं आता है. എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ശരിയാക്കേണ്ടി വരും. आमेन, प्रेज लॉर्ड. कभी कभी हमें भी सुधारने की ज़रूरत है. यस, ऑफ कोर्स, आमेन. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അതെനിക്ക് നല്ല വിഷമമായി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നായിപ്പോയി. थोड़ी देर के बाद थोड़ा दुख लगा मुझे, मैंने ऐसा बोल दिया. ഞാൻ മാറി റൂമിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനോട് കരഞ്ഞ്, मैं बाद में रूम पर जाके बैठ के मैं रोया परमेश्वर के മുട്ടുകുത്തി सामने. അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ്, घुटने में बैठ के मैं കർത്താവ് रोया. പറ്റിപ്പോയി, പറഞ്ഞുപോയി. परमेश्वर गलती हो गया. പരിശുദ്ധാത്മ അന്നേരം എന്നെ ഓർപ്പിച്ചു, पवित्र आत्मा ने मुझे याद എടാ നീ दिलाया, പറഞ്ഞത് തെറ്റായിപ്പോയി, तूने जो कहा वो गलत हो गया. നീ അവരെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞതെങ്കിലും പക്ഷെ പറഞ്ഞ ടോൺ ഇച്ചിരി തെറ്റിപ്പോയി. तूने कहा वो उन्हें सुधारने के लिए, लेकिन जो टोन तूने यूज किया वो गलत ഞാൻ था. മാറിപ്പോയിരുന്നു കരഞ്ഞ്, मैं दूर जाकर യേശുപ്പാ रोया. ക്ഷമിക്കണേപ്പാ. यशोपा मुझे माफ ഒത്തിരി करना. നേരം കരഞ്ഞ്, बहुत देर तक रोया. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമി അറിയാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ, സാമുൽ പാസ്റ്റർ അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, സ്വാമി നടുക്ക് വന്നിരുന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൈ പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ. थोड़ी देर के बाद सैमी मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे हाथ पकड़कर बैठ के रोने लगा. ഈ ചെറിയ കാര്യം പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കും. छोटी बात भी पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाती है. നമുക്ക് വളരെ നിസാരമെന്ന് തോന്നും, हमें लगता है कि वो बहुत छोटी सी बात है, ആ ചെറിയ കാര്യം പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചു തരും. लेकिन वो छोटी बात भी परमेश्वर हमें याद അത് दिलाता है. അന്നേരം ക്ഷമ ചോദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ वो तुरंत तब के तभी माफी मांग कर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो വലിയ വിടുതൽ നമ്മൾ കാണുവാൻ बड़ा കഴിയും. छुटकारा हम देखेंगे. ആമേൻ, आमेन, हालेलुया. हालेलुया. ദൈവം എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു. परमेश्वर सबको आशीष किया, इस्तेमाल കർത്താവ് किया. തന്നൊരു സ്നേഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. परमेश्वर ने दिया वो प्यार हम सबके अंदर है. ആ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്ന് പോകണം. उस प्यार में उन आगे बढ़ते जाना है. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ദൈവനാമം सबको മഹത്വപ്പെടട്ടെ. धन्यवाद. പാസ്റ്ററിന് परमेश्वर के പ്രത്യേക नाम की നന്ദി. महिमा हो. സാമി, सैमी. സാമി, Hallelujah. മോനെ പാടാ. Hallelujah. Great things are happening among our young people. मैं इतना समय गवाही के लिए कभी देता नहीं है,
Yeah, you can translate. I do not used to give this much time for the testimony. इतना टाइम मैंने कभी दिया नहीं है टेस्टिमनी Maybe you may be thinking, where is the pastor? Pastor कहाँ जाके बैठा है? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കാണും പാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? Pastor को क्या हो गया? പാസ്റ്ററിന് എന്ത് പറ്റി? Hallelujah. Hallelujah. Because you know, जब नवजवानों को प्रभु स्पर्शन करते, യൗവനക്കാരെ ദൈവം തൊടുമ്പോൾ मैं बीच में आके कुछ करना नहीं चाहता. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Hallelujah. काफी कलीसियों में नवजवानों को मिलता नहीं है. പല സഭകളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം യൗവനക്കാർക്ക് Number of കിട്ടുന്നില്ല. churches is difficult to get young people. പല സഭകൾക്കും ഇങ്ങനെ യൗവനക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല. But I thank Lord for all our young generation, our youth team. God is using them mightily. പക്ഷേ നമ്മുടെ സഭയിലെ എല്ലാ യൂത്ത് ടീമിനെയും എല്ലാ യങ് ജനറേഷൻസ് I used to think in that way. Sami is not officially our youth pastor, but he is acting as a youth pastor. Amen, amen. Praise Lord. We didn't appoint him as a youth pastor, but he is acting as a youth pastor. Amen. Hallelujah. I used to say it in my home. I used to say to Sandy, Sami is actually he's you know, he's working as a youth pastor. Hallelujah. Thank you Jesus. परमेश्वर ने अपना कलीसिया को बहुत प्यार किया है. परमेश्वर ने अपना कलीसिया को बहुत प्यार किया है. हालेलुया. मैं अपर रूम में मीटिंग हो रहा था. These people they were ministering and I was sitting inside. मैं अंदर बैठा था अपर रूम में. मैं मतलब मैं कोने में जाके बैठ रहा था. I was sitting in a corner. I was just sitting there and praying. और मैं वहाँ पर बैठ के बस I प्रार्थना thought कर that रहा था. let the Spirit use our young people. और मैं ऐसा कह रहा था कि आप पवित्र आत्मा हमारे नौजवानों को इस्तेमाल करे. हालेलुया. जब प्रभु एक जनरेशन को तैयारी कर रहे हैं. When God prepares a generation. Why I want to come in between and I want to disturb. मैं क्यों उसके बीच में आकर उधर डिस्टर्ब करूं? हालेलुया. हालेलुया. मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप में से हर व्यक्ति को प्रभु इस दिनों में बहुत सामर्थ के साथ में उपयोग करने की. And I'm praying that the Lord may use you mightily in coming days. Love to hear that you start give prophecy and God is giving you visions. और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी और दर्शन दिखाए हैं. रिंकी को मैंने काफी बार बताया है. She's having a prophetic anointing, एक कॉल है. Pastor has told Rinki a lot of times that she has a prophetic anointing. प्रभु ने उस कामों को शुरू किया. And the Lord has started that work in her. Angel is in full time now. एजेंट जो है वो पूरी मिनिस्ट्री में उतर गई है. God will use her. परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेंगे. नितिन उस दिन में अपना कैंप में मैंने हाथ रखे ना चुना हुआ 7 में एक है नितिन. And I said that he is one among the 7. So उनका भी मिनिस्ट्री शुरू हो गया. And God has started his ministry as well. आप सबको प्रभु उपयोग करेगा. And God is going to use each one of you. It's a beginning. ये बस शुरुआत है. I do not know how to continue this revival. और मैं नहीं जानता कि इस बेदारी को कैसे निरंतर बनाए रखूं. But I know that. और मैं जानता हूँ. जो अग्नि को आग को जलाए परमेश्वर. The one who lit the fire. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. उस आग को बने रखेगा. He is going to continue to. रिवाइवल के लिए एक जगह का इंपॉर्टेंस नहीं है, एक प्लेस का इंपॉर्टेंस नहीं है. The place doesn't matter for a revival. मैं विश्वास कर रहा हम सब के दिल के अंदर प्रभु ने उस आग डाला है. I believe that God has put that fire in our hearts. उस आग को बुझने ना दे. Don't let the fire quench. Come on Sami, come. I want to pray for you. Hallelujah. सामी के लिए प्रार्थना करेंगे. Say something बेटा. Come here. Just pray for our youth team. अपना नौजवानों के लिए प्रार्थना कर लीजिए. Let's pray for our youth. I believe that in the coming days God is going to use them in a mighty way. Amen. और आने वाले दिनों में परमेश्वर अद्भुत रूप से इन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं. A new generation is coming up. एक नई पीढ़ी खड़ी हुई है. मैं उस जो स्टेज में खड़ा है. And I'm standing at that stage. यीशु का हाथ में रखे साइमन जो प्रार्थना किया उस स्टेज में. I'm at that stage where Simon Peter prayed in the hands of Jesus. I feel that I am happy. मैं बहुत खुश हूँ जो प्रभु ने कार्य कर रहे वो देखे. I'm very happy. I'm really glad to see and witness the works God has started. एक अकेले पीढ़ी को प्रभु तैयारी कर रहे. Amen. Because the Lord has prepared a next generation. The kingdom is in safe hands. Amen. Amen. परमेश्वर का राज्य सुरक्षित हाथों में है. safe hands. कलीसिया सुरक्षित हाथों में है. Hallelujah. Hallelujah.
प्रभु अकेले जनरेशन को पवित्रता के लिए खड़ा है, पवित्रता के लिए सोचने वाला एक जनरेशन को तैयारी कर The रहा है। Lord is preparing a next generation that stands for holiness. धन्यवाद यीशु। Amen. सब लोग Hallelujah. इस जो यूथ टीम की ओर हाथ बढ़ा के प्रार्थना कर Let's दीजिए। all pray for the youth team together. माता पिता लोग प्रार्थना कर दीजिए। All the parents, please I pray know for your that you children. all are happy. आप मैं सभी जान- लोग खुश हैं। I know that you all are really अपना glad. बच्चों जब सत्य में सच्चाई में चल रहे तभी माँ बाप से माता पिता से बढ़कर कौन खुश होने वाला है? When our children walk in truth and spirit, no one else is happier than our I parents. know that you all are happy. मैं जानता हूँ सभी बहुत खुश I हैं. know that hallelujah आप सभी लोग इन बच्चों के लिए आने वाले दिनों में अधिक प्रार्थना And I know करेगा। that you're going to pray even more for our kids. Thank you Holy Spirit. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु. Thank you Holy Amen. Spirit. Hallelujah. There will be the support of the elders, the seniors of the church for the youth team. Hallelujah. नौजवान जो है वो बुजुर्गों के सपोर्ट बनकर खड़े होंगे. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. सब लोग प्रार्थना कर दीजिए। Amen. Hallelujah. प्रभु जी जो कार्य इस Hallelujah. नौजवानों में आपने शुरू किया Thank you, Lord, for the work that you have started in the youth. इस दिनों में उसको और आपने बढ़ाई। In coming days, Lord, you grow them. इन सबको इस देश में एक बहुत बड़ा चमत्कार बनाइए प्रभु जी। Make them a miracle in this country, Lord. उनको एग्जाम्पल्स बनाइए प्रभु जी। Make them examples for others. काफी कलीसिया का नौजवान इनका द्वारा इन्फ्लुएंस होने Amen, के लिए amen. Let the other churches, youth be influenced by us. हम इनको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में आशीषित करके प्रार्थना We करते bless them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. हैं। एकता के साथ में खड़ा होने के लिए उन्हें मदद कर Amen. Let them दीजिए। stand with unity. We Amen. seal them, we protect them under the mighty wings of Jesus Christ. यीशु के नाम से हम उन पर मोहर लगाते हैं. वैसे अपने Hallelujah. किया बोल के धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you for hearing and answering our prayer. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए In धन्यवाद. Jesus mighty name. यीशु के नाम से मांगते हैं.